Before starting today's video, I am extending my warm condolence for this natural calamity. We cannot fight against the nature, but can always fight against the circumstances we are surrounded with. Most of the roads you will see in today's episode are now washed away. I came back on 2nd July when things were normal, but within 10 days all have changed. So cherish the last glimpse of these beautiful places. Himachal, you are in my prayers. Hey guys, welcome you all to the second episode of my Ladakh series. अभी टाइम है 10 AM इन द मॉर्निंग और हम अभी निकल रहे हैं मंडी से। तो शुरू करते हैं आज का दिन। आई होप आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। आज भी हाई रेनफॉल का प्रेडिक्शन है, तो देखते हैं क्या होता है आगे तक। तो लेट्स गो। और बाइक इज़ रेडी। We started today's journey at 10. Although we wanted to start early, but Mandi to Vuntar road was closed from last 10 hours because of landslides. Before 10 am, no vehicle was allowed to move forward towards Manali. At 10, news came that roads are cleared now, so we and many people like us started our journey from Mandi. But none of us knew that there were multiple landslides which are going to take next 24 hours to clear. So most of the people got stuck on road and couldn't reach Manali. मंडी सिटी। Thankfully, my iMap showed us IIT Mandi Road, which connects the main road on Vuntar. Though it was narrow mountain road, but to trust iMap was the right decision. If we wouldn't take that road, then it was impossible to reach Manali that day and all our Ladakh schedule plans would have been collapsed. Taking that road has one more positive side. We got to experience the beautiful Dhauladhar range and its immense beauty. Though it was a rainy day, but we enjoyed that road journey very much. मेन मनाली वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल ही बंद है। 2-3 जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है, औट में भी लैंडस्लाइड हुआ है, तो रास्ता एकदम ही बंद है। तो हम लोग एक बाईपास रास्ते से जा रहे हैं। ये रास्ता आईआईटी मंडी के सामने से होते हुए भुंटार में जाके मिलेगा। इस रास्ता भी बंद था लैंडस्लाइड की वजह से, पता नहीं अब तक खुला है या नहीं, पर ट्राई कर रहे हैं इस रास्ते से जाने के लिए। और यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। ये वाला मंडी आईआईटी का रास्ता है, यहाँ से आईआईटी में अंदर जा सकते हो।
लैंडस्लाइड के साथ ही चला गया और यहाँ से सारे बह के इधर को आ गया। IIT मंडी। In this bypass road, we are crossing the famous Dhauladhar range of Himachal Pradesh. बोला जाता है most beautiful experiences come in most unexpected way. Dhauladhar was same to us. We were totally awestruck by its immense beauty. Dhauladhar is a mountain range which is a part of Lesser Himalaya. It rises from the Shivalik hills to the north of Kangra and Mandi. Dhauladhar also famous for its natural beauty. Dhauladhar का मतलब होता है the white range, and it is famous for its typical dark granite rocky formations and steep rise of its snow-capped peaks. Dhauladhar mostly composed of dark granite, but also you will see slate, limestone and sandstone on its formation. Slate often used for the roofs of houses in this region. फाइनली हम लोग आ चुके हैं मेन रोड के नज़दीक। आप देख सकते हो भुंटार में जाके ये मिलेगा, दैट इज मेन रोड मंडी मनाली हाईवे। और ये हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं। दिस इज भुंटर एयरपोर्ट। कुल्लू मनाली के सबसे नजदीक वाला एयरपोर्ट यही है। This airport is considered as a challenging airport for pilots due to its single runway which set in a deep valley. हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके हैं लंच करने के लिए, और ये जो जगह है ये कुल्लू और मनाली के बीच में एक जगह है। वेदर अभी भी क्लाउडी है और हमने एक लस्सी ऑर्डर किया है और लंच भी आने वाला है। लंच में एक थाली है ट्राउट फिश थाली और प्लेन राइस और चिकन ऑर्डर किया है, तो वो आने के बाद मैं दिखाती हूँ। आज सुबह से हम लोग कहीं पे नहीं रुके, कुछ खाया भी नहीं। हम बहुत भूख लगी है, यहाँ पे अच्छे से खाएंगे और आगे मनाली होके केलांग या जिस्पा तक जाएंगे। आवर लंच इज़ डन। इस जगह से हमने लंच किया है और टोटल बिल हुआ है 986। फ़िश थाली जो था दैट इज़ 350 रुपीज़, प्लेन राइस 90 रुपीज़ और चिली चिकन मैंने हाफ़ लिया था दैट इज़ 320 रुपीज़। इसके साथ था मिन लेमन जूस और स्वीट लस्सी, दोनों ही 90 एंड 80 रुपीज़ करके है, एंड मिनरल वाटर 25 रुपीज़। सो दिस इज़ 986 रुपीज़। तो यहाँ से अब चलेंगे सीधा केलोंग और जिस्पा की तरफ।
तो मनाली से हमने एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ले लिया है साथ। इसका प्राइस हमें पड़ा है 799 रुपीज़, जो अगर ऊपर हमें सांस लेने में तकलीफ़ आई तो काम आ सकता है। ऑटल टनल के 10 किलोमीटर आगे आके एक जगह पे हम रुके हैं। दिस इज़ ब्यास रिवर। वहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं और वहाँ पे सन कभी निकल रहा है कभी छुप रहा है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अटल टनल। यहाँ पे हमारे कंटेनर्स चेक हो रहे हैं एज कैरिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल डीजल आर नॉट अलाउड इनसाइड द टनल। This tunnel is an engineering marvel in Himalayas. It is the longest highway single tube tunnel above 10,000 feet and connects Manali to Lahaul Spiti Valley. It is almost 10 km long and comes under Border Road Organization. Now the time is 5 PM और हम लोग अटल टनल को क्रॉस कर चुके हैं। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल क्रॉस करके ही आपको एकदम ही बारिश नहीं मिली, इधर एकदम सूखा है। दैट इज चंद्रा रिवर। बस ऐसा ही मौसम रहे, हम लोग ठीक से पहुंच जाए। एंड वी आर एंटरिंग इनटू लाहुल वैली। लाहौल स्पीति वैली में एंट्री करने के लिए एक पर्चा कटेगा। इसका जो है वो है 60 रुपीज़ का पर्चा। पर्चा 50 रुपीज़ का कटा है। ओके, अटल टनल को क्रॉस करके हम लोग लाहौल वैली में इंटर कर चुके हैं एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड शिशु। मेरे पीछे दिस इज़ शिशु लेक और उसके भी पीछे आई डोंट नो गोप्रो में कितना आ रहा है, दैट इज़ शिशु वाटरफॉल। बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। ये लेक के पास में से वहाँ तक गाड़ी लेके जा सकते हैं और वहाँ से थोड़ा सा ट्रैक है शिशु वाटरफॉल जाने के लिए। हमने प्लान तो किया था वहाँ पे जाने के लिए, बट लैंडस्लाइड की वजह से बहुत टाइम लग गया, तो इसीलिए अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते। पर यहाँ से ही देख रहे बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है। सीसू पार करके हम लोग एक रोड साइड रेस्टोरेंट में रुके हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि थोड़ा लो फील कर रहे हैं। यहाँ से तांडी है 10 किलोमीटर दूरी पे और केलांग लगभग 15 किलोमीटर होगा। तो कॉफ़ी ख़त्म करते हैं फिर उस तरफ को चलते हैं।
तो हम लोग तंडी पेट्रोल पंप तक पहुंच चुके हैं। तो तंडी पेट्रोल पंप के बाद हमको केलोंग में पेट्रोल पंप मिलेगा एक, और उसके बाद एकदम कारू में जाके मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग फुल टैंक करा लेते हैं। तंडी पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवा लिया है। 99.17 है पर लीटर प्राइस यहाँ का, एंड हमें फुल टैंक करने में 1057 बिल आया है। दिस इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर। तो ये वाला है भागा रिवर, ये वाला है चंद्रा रिवर, जो यहाँ पे आके कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, और यहाँ पे इसका नाम हो रहा है चंद्रभागा, और कोई कोई इसको चेनाब भी बोलता है। ये आगे जाके मेन इंदास नदी में मर्ज हो जाएगी। एंड दिस इज़ द फेमस तंडी ब्रिज। और यहाँ से आप कॉन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। चंद्रा एंड भागा नदी के कॉन्फ्लुएंस को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। मान्यता है कि चंद्रा मून गॉड की बेटी है एंड भागा वाज द सन ऑफ सन गॉड। दोनों बालाचला टॉप में मिलते हैं एंड दे डिसाइडेड टू मैरी ईच अदर बट रैन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Chandra was smart and active. She easily found her way and reached Tandi after covering the distance of 115 km. But Bhaga faced difficulty to reach and covered about 60 km, which was extremely difficult. They both met at Tandi and their marriage was performed there. Snow-capped ranges एकदम ही सामने ओपन हो गया है अभी। हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ से जिस्पा है 18 किलोमीटर, और ये रास्ता देख के मुझे नाको जाने का रास्ता याद आ रहा है। वो रास्ता भी ऐसे ही पत्थर काट काट के बनाया गया है, एकदम देखने में ऐसा ही है। जिस्पा इज़ 17 किलोमीटर नाउ। अगर ट्रैफिक नहीं मिले रास्ते पे तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। हमें तो अभी एकदम खाली मिल रहा है क्योंकि 6 बज गए हैं, और आज मनाली वाला रास्ता भी क्लोज था, तो वहाँ से भी कोई गाड़ी आ नहीं सकी। थोड़े बहुत बाइक और 4 व्हीलर ही मुझे जिस्पा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। एक बाइक हमें क्रॉस करके गई। ऐसे एकदम ही जिगजैग रोड है। इस ऐसे रास्ते से ना आप ज़्यादा स्पीड में जा नहीं सकते क्योंकि थोड़ी आगे आगे ही मोड़ आ रही है। जिस्पा हमें दिखना स्टार्ट हो गया है और 4-5 किलोमीटर ही होगा यहाँ से। जिस्पा जो सिटी है वो छोटा सा ही कस्बा है, भागा रिवर के बैंक में बसा हुआ। This is the homestay where we choose to stay tonight, गेमूर homestay। ये ऊपर हम लोगों का रहने की जगह है। 1500 है रूम का टैरिफ, खाना इंक्लूड नहीं है। रूम में लाइट बहुत कम है पर गीज़र है और चार्जिंग पॉइंट भी बहुत सारे हैं। तो ऊपर चलते हैं और आपको रूम भी दिखाते हैं। यहाँ पे भी एक रूम है पर ये हमने चूज़ नहीं किया। हमने चूज़ किया है ये वाला रूम। मैंने बोला ना लाइट बहुत कम है। दिस इज़ बाथरूम, गीज़र भी है और विंडो से बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। और सच बताऊँ बजट में भी आ गया। 1500 इज़ वेरी रिजनेबल, तो इसीलिए हमने
बार्गेन भी नहीं किया क्योंकि हमें ना ऑनलाइन बहुत कॉस्टली होटल्स दिखा रहे थे, 3000 4000। सो आई एम हैप्पी। आज मंडी से जिस्पा तक का जो सफ़र था, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। आपने देखा कि कितने डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद हमने जिस्पा तक पहुंच पाए हैं। हमारा लद्दाख का डे 2 का जर्नी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून फॉर मोर एपिसोड्स। See you in my next vlog. Till then, tata, take care and stay safe. And also I will share all the price breakers जो हमने आज खर्च किया रास्ते में, ताकि आपको आसानी हो बजट प्लान करने में। So thank you for watching this video.